Hello, this is Praveen Kumar. Good morning, and today we will discuss about the topic Raman-Tyrman reactions. And in this reaction, we will see what will be the reactant, what will be the product in the presence of catalyst, and what will be the mechanism, and how to ask the question in IIT JEE and JEE Mains. So we will start about these topics. First of all, we will take the phenol in the presence of NaOH and CH3 and H plus H2O, and the product will be CHO, salicylic aldehyde. It's known as salicylic aldehyde and it's known as phenol. I think you know very well. This is phenol and this is salicylic aldehyde. Salicylic aldehyde. And what will be the mechanism? This is the reactant, this is the product, and this will be the catalyst. The mechanism is this. First of all, CaCl3, it's also known as chloroform. And what will be the structure of chloroform? Just like, and here it will be react with OH minus. OH minus come from Na plus and OH minus. When NaOH will be break, then Na plus and OH minus, and H will be react with OH minus, and H2O will be remove, and the hydrogen will be come to the carbon, and then this will be happen here. You know very well, I think chlorine is a more electronegativity compared to the carbon. So the chlorine will attract carbon, and due to the attraction, the chlorine will be removed from the CCl3, and then they remove the chlorine, and then the CCl and lone pair. Here this is known as dichlorocarbene, and you can see that dichlorocarbene, because there will be two chlorine, one carbon, and here the octet will be not completed. Two electrons, only 6 electrons are available. So you can say that here electron is deficient. It is also called acid. It's behave like acid. Next, the phenol. The phenol is aromaticity, because you can see, and here OH minus, again it come from Na plus and OH minus, and H will again react with OH minus, and H2O will be removed, and H2O will be removed. Then the next step will be just like O minus, and you can see dichlorocarbene is also available in the presence of CCl2. Here is, and the negative charge will become here, and the double bond will be open, and then due to this bond will be open, the negative charge will become here, and the next step we will see the negative charge will become here, and here double bond with oxygen, and the negative charge will become due to the loss of aromaticity, and due to loss of aromaticity the negative charge will come. So here the negative charge and this
will react with, here is the electron rich and here is electron dense, so they will, this is just like इलेक्ट्रो, दिस इज जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल जैसा ये बिहेव करेगा और इस पे ये अट्रैक्ट करेगा और वो इस प्रकार से यहाँ से Cl2 है जो बन जाएंगे और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है जो ऑलरेडी उपस्थित रहेगा, तब है जो कार्बन का चारों बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं जो पूरेंगे। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि जब ये इससे अट्रैक्ट करता है तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये हाइड्रोजन है जो 4 बॉन्ड है, तो ये कोशिश करेंगे कि ये बेंजीन का एरोमेटिसिटी पुनः देने के लिए, इसके लिए हाइड्रोजन है जो अपने इलेक्ट्रॉन को आहुति देगा, और इलेक्ट्रॉन को जब आहुति देगा तो ये सिर्फ H है जो इस नेगेटिव चार्ज के साथ मिलकर नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड जैसे ही बनेगा तो ये है जो खुल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे कभी 5 बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और ये है जो CH के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और एक Cl और एक Cl इस प्रकार से रहेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो NaOH है उसका भूमिका क्या है, वो अभी आगे भी भूमिका अपना निभाएगा, और वो 2NaOH के साथ आता है। वो 2NaOH के साथ इसलिए आता है कि जब Na प्लस OH माइनस टूटेगा, फिर Na प्लस OH माइनस टूटेगा, और यहाँ पे क्लोरीन है जो दोनों क्लोरीन यहाँ से निकलेगा। जब दोनों क्लोरीन निकलेगा तो एक बार तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH माइनस टूटेगा, जो कि नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि वो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन में माइनस चार्ज एग्रीमेंट्स, और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हाइड्रोजन सेम ये OH हो जाएंगे और वो ये OH हो जाएंगे कार्बन के साथ, और ये इस प्रकार से रहेंगे। तो हम ये देखेंगे कि यहाँ से H2O है जो इस मॉलिक्यूल से निकलना चाहेगा, और जब H2O यहाँ से निकलेगा, H2O ये रिमूव करेगा, तो कुछ इस प्रकार से नेक्स्ट स्टेप हमें दिखाई देंगे कि O माइनस, और ये एरोमेटिसिटी ऑलरेडी फिर से गेन है जो कि दिखाना जरूरी है, और ये जब OH निकलेंगे तो प्लस आएंगे, जब हाइड्रोजन निकलेंगे तो माइनस आएंगे, और ये प्लस माइनस से यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, C डबल ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन निकल रहा है और यहाँ पे OH टोटल निकल रहा है, तो ये H2O निकल रहा है ओवरऑल। तो हम ये देखेंगे कि ये CH और ये डबल बॉन्ड O सिर्फ यही बचेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि हमारे पास H प्लस है ऑलरेडी, तो ये H प्लस जो है इस स्टेप को हम बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पे एसिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा, और इस एसिडिफिकेशन से जो हाइड्रोजन है वो O माइनस पे जाकर अटैक करेगा, और O माइनस पे जब जाकर ये अटैक करेगा तो इस प्रकार से हमको पुनः OH यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम देखेंगे कि वो C डबल बॉन्ड OH या CH डबल बॉन्ड जो भी हो, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा फाइनली। और हम देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट हमारा बन रहा है वही CHO बन रहा था यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, जस्ट लाइक यहाँ पे बन रहा है। तो कह सकते हैं इस प्रोडक्ट का नाम है जो सैलिसाइल एल्डिहाइड। इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है, बिकॉज मैकेनिज्म इस पर्पस से जरूरी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन इलेक्ट्रॉन डेंस है। तो इस प्रकार से पूरे प्रोसेस को जानना जरूरी है, और ये मैकेनिज्म हो सके जितना ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और यही रायमंड-टाइमन रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोलवेज रिएक्शन। जो कोलवेज रिएक्शन में जस्ट फिनॉल है, जो यहाँ पे कुछ जो कैटलिस्ट है वो चेंज होकर के दूसरा चीज रहेंगे और फिर दूसरे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं कोलवेज रिएक्शन। इसका रिएक्शन ध्यान में रहे। कोलवेज रिएक्शन क्या होता है? दोनों रिएक्शन है,
रामेटाइमर जो प्रीवियस रिएक्शन था वो भी अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक से और ये भी अल्कोहल फिनॉल टॉपिक से हैं, बट दोनों जस्ट को रिलेटेड है, इसलिए हम दोनों रिएक्शन को एक साथ डील करना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि रिएक्टेंट जो है वो जो प्रीवियस में था वही है, फिनॉल ही है, और इसके प्लस ये जो है NaOH CO2 और सेम है बाकी, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये फिनॉल है और ये सैलिसिलिक एसिड है, OH। फिनॉल में सैलिसिलिक एसिड है, दोनों में हम ये कॉमन देख सकते हैं, उसमें NaOH भी था, H+H2O भी था, सिर्फ CO2 है और उसमें CH3 था जो क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं। यही दोनों में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। जो इस डिफरेंस को हम कैसे याद रखेंगे, ये दोनों रिएक्शन को मैकेनिज्म के बाद उस टॉपिक पर भी हम जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि यहाँ से रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म हम ये कहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिएक्टेंट को देखेंगे जो हमारा है, इसमें OH जुड़ा हुआ है, ये जो पुनः Na+OH- जो टूटेगा तो OH- के साथ ही OH- जाएगा और वो इसके साथ रिएक्शन करके H2 को रिमूव करके, H2 रिमूव होगा जब इसके साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ऑक्सीजन माइनस यहाँ आ जाएगा और ऑक्सीजन माइनस आ जाएगा। उसके बाद फिर ये ऑक्सीजन माइनस जो यहाँ पे आए हुए है, इसको थोड़ा सा अच्छे से दिखाइए, ये ऑक्सीजन माइनस है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है जो यहाँ पे आना चाहेगा, तो ये है जो एरोमेटिसिटी फिर से लॉस करेगा जो कि प्रीवियस रिएक्शन में जस्ट लाइक किया था। तो यहाँ से ये इस स्टेप को करने के बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा बनेगा नेक्स्ट स्टेप डबल बॉन्ड O और यहाँ पे माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से एरोमेटिसिटी खुलेगा तो, और यहाँ पे पॉजिटिव जो डबल बॉन्ड को बनाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो CH3 क्लोरोफॉर्म था रामेटाइमर रिएक्शन में, तो यहाँ पे ये क्लोरोफॉर्म ना होकर के CO2 है, तो CO2 को हम यूज करेंगे। तो CO2 का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे जो कुछ इस प्रकार से है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड भी एसिड ही है, ये भी एसिड के जैसा ही बिहेव करता है। ये नेगेटिव चार्ज फिर से इस पे अटैक करेगा और यहाँ से ये जो है बॉन्ड खुलेगा, क्योंकि ये बॉन्ड को रख नहीं सकता जब इससे ये जुटेगा तो जब ये खुलेगा और इससे जुटेगा तो नेक्स्ट स्टेप है जो कुछ इस प्रकार से कह सकते हैं कि होगा, ये डबल बॉन्ड O है और यहाँ से C डबल बॉन्ड O और ये O माइनस हो जाएगा क्योंकि ये खुला, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इस पे, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जैसे के तैसे जैसे पहले था उसी प्रकार से रहेगा। अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन है जो फिर से अपने इलेक्ट्रॉन को आहुति देगा, और आहुति देने के बाद ये इलेक्ट्रॉन को जब आहुति देगा तो यहाँ पे फिर से एरोमेटिसिटी रीअगेन, इस बेंजीन में फिर से एरोमेटिसिटी आएगा जो कि बहुत जरूरी है, आना भी चाहिए। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि इस स्टेप में ये और ये इलेक्ट्रॉन का दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा, और ये H है जो इस नेगेटिव चार्ज के साथ जाकर के, नेगेटिव चार्ज जो ऑक्सीजन के साथ है उसके साथ जाकर जुड़ जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जब आएंगे तो इसका बॉन्ड है जो खुल जाएगा, और ये बॉन्ड खुलेगा तो फिर से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे वो हो नहीं सकता है। तो इस प्रकार से ये बॉन्ड खुलेगा और नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे कह सकते हैं कि C डबल बॉन्ड O और O माइनस, इस प्रकार से O माइनस जो था तो यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, है कि नहीं, OH हो जाएगा। अब पुनः वही स्टेप होगा H+, जिसको हम एसिडिफिकेशन बोलते हैं। एसिडिफिकेशन का प्रोसेस होगा जो O माइनस पे जाकर अटैक करेगा, और O माइनस पे अटैक करने के बाद हम ये देखेंगे कि
इसका पुनः एरोमेटिसिटी भी ऑलरेडी तो गेन है ही, और ये OH हो जाएगा, और यहाँ पे COH भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन करेगा यहाँ पे, तो इसको OH भी लिख सकते हैं, और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। सेम बात है, इधर से डबल बॉन्ड और यहाँ पे लिखने का ये मतलब हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्मेशन भी करता है। तो हमको प्रोडक्ट देखना है फाइनली, जो बोल रहे थे कि ये हमारा बनेगा, यही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, और इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। तो हम दोनों मैकेनिज्म में देखें कि दोनों का मैकेनिज्म कैसा है, और हम ये देखें कि क्या रिएक्टेंट है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। दोनों में रिएक्टेंट है जो फिनॉल ही है, और प्रोडक्ट एक में सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाता है और एक में सैलिसाइलिक एसिड बनाता है। सैलिसाइलिक एल्डिहाइड जो बनता है उसमें क्लोरोफॉर्म होते हैं यहाँ पे, और इसमें जो बनाते हैं सैलिसाइलिक एसिड जो बनता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो अब हम दोनों का रिएक्टेंट प्रोडक्ट देख चुके हैं, मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। दोनों रिएक्शन को कैसे हम कुछ शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम याद रखेंगे उसके लिए हम कोशिश करते हैं दोनों रिएक्शन को दोनों साइड लिख के कि उसमें क्या क्या रिएक्टेंट है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, क्या कैटलिस्ट, इसको हम आगे देखते हैं कि कैसे करेंगे, और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट हम जैसा बताए थे कि ये दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट सब देख चुके हैं। अब कैसे हम इसको याद रखेंगे जो कि कम टाइम में हम देखते हुए क्वेश्चन को क्लिक कर दें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक कोल्वेज रिएक्शन थे, एक रायमंड-टाइमन रिएक्शन थे। तो अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कोल्वेज रिएक्शन और रायमंड-टाइमन रिएक्शन है। तो हमको सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, तो सबसे ज्यादा यूज वाला जो चीज है कि यूज क्या होता है, तो कह सकते हैं कि एसिड ज्यादा होता है यूज, क्लीनिंग एजेंट वगैरह में ज्यादा यूज होता है, और एसिड ऐसे भी बहुत सारा लाइफ में यूज होता है। और इनका जो प्रोडक्ट है वो एल्डिहाइड है कि नहीं। एल्डिहाइड का उतना यूज नहीं होता है, और इसी से हम कह सकते हैं जो कोल्वे बनाए थे वो सैलिसाइलिक एसिड बनाए, और ये सैलिसाइलिक एल्डिहाइड बनाए, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाए, सैलिसाइल एल्डिहाइड बनाया है कि नहीं। तो हम ये कहेंगे कि कोल्वेज ने अकेले वो करके दिखाया जो रायमंड और टाइमन मिलके नहीं कर पाए। हमारे लिए यूजफुल सबसे ज्यादा एसिड होता है, तो हम कहेंगे कि एसिड जो हमको कोल्वेज से मिला है, कोल्वेज के रिएक्शन से मिला है, तो कोल्वेज ने अकेले वो करके दिखाया जो रायमंड और टाइमन दोनों मिलके नहीं कर पाए। तो वो क्या किए, तो ये एसिड बनाए। कौन सा एसिड बनाए, सैलिसाइलिक एसिड बनाए। और जो कम यूज होता है वो कम यूज होता है उसको क्या है, एल्डिहाइड। तो इसको कौन बनाए, तो सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। ये कौन बनाए, तो रायमंड-टाइमन बनाए, है कि नहीं। ये हो गया सैलिसाइलिक एसिड और सैलिसाइलिक एल्डिहाइड। कैसे याद रखेंगे प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो इसमें कैटलिस्ट के रूप में जो यूज हुआ था वो क्या था। रिएक्टेंट तो दोनों का सेम ही है, रिएक्टेंट दोनों का सेम ही है, फिनॉल थे, फिनॉल ही है कि नहीं। और इसी के प्रेजेंस में NaOH भी दोनों में सेम है, H+ H2O भी दोनों में सेम है कि नहीं। जैसा हम देखें, इसको शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं कि इसको याद रखिए। और इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं वो एसिड बने हैं, तो C≡OH और ये OH, ये सैलिसाइलिक एसिड हुए। और इसमें जो NaOH, और इसमें क्या था प्रोडक्ट, और इसमें क्या था ये देखते हैं। इसमें सेम चीज है जो पहले लिख दीजिए, दोनों में बराबर बात इतना है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगा, अब प्रोडक्ट चेंज होगा और एक कैटलिस्ट भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो हम देखते हैं। चेंज हो रहा है, यहाँ पे CO2 है, तो CO2 है और यहाँ पे CH3 होगा। वो कैसे हम याद रखेंगे, तो कह सकते हैं कोल्वेज हमारे लिए जो यूजफुल चीज है वो बनाए। तो यूजफुल चीज है वो बनाए तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा दिमाग लगाए होंगे, और ज्यादा दिमाग लगाए होंगे तो ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डाले होंगे, और ज्यादा प्रेशर डाले होंगे तो उनका हार्ट बीट रेट है जो बढ़ गया होगा, और जो हार्ट बीट रेट बढ़ा होगा, उनका ब्रीदिंग रेट बढ़ा होगा, तो कह सकते हैं वो नॉर्मल ह्यूमन की तरह कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए होंगे शरीर से। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि कोल्वेज रिएक्शन में CO2 होगा। रही बात रायमंड-टाइमन में क्या होगा और कैसे हम याद रखेंगे, तो रायमंड और टाइमन दो आदमी थे, दोनों मिलके बनाए हैं, तो प्रोडक्ट तो बन गया एल्डिहाइड, सैलिसाइल एल्डिहाइड, मगर बात है कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। तो इसके लिए दोनों आपस में झगड़ गए
कि हमको क्रेडिट मिलना चाहिए, मतलब रायमन रिएक्शन बनना चाहिए, वो कह रहे थे टाइमन रिएक्शन सिर्फ होना चाहिए। तो बात ऐसा नहीं हुई। दोनों के बीच में जब लड़ाई हुआ तो ये लड़ाई के दरमियान ये क्या किए कि बेहोश होने वाला गैस होता है CaCl3। जब प्रोडक्ट दोनों साथ मिलकर बनाए थे तो जानते ही थे, वो दोनों है जो CaCl3 को यूज कर दी बेहोश करने के लिए, कि वो बेहोश हो जाए, और वो इसलिए कि वो बेहोश हो जाए। पता चला कुछ देर के बाद दोनों उठे। जब दोनों उठे तो देखे कि फिर दोनों बेहोश होकर के उठे हैं, इसलिए सोचे कि चलिए अब इसमें दोनों का नाम रखा जाएगा, इसलिए इस रिएक्शन का रायमन और टाइमन नाम दिया गया। और वो जो बेहोश करने वाला जो हम यूज किए थे उसी को CHCl3 बोलते हैं। और यही ये दोनों में अंतर है कि रायमन टाइमन में CHCl3 हो जाएंगे और कोलवेज रिएक्शन में CO2 हो जाएंगे। अब हम आई थिंक आप दोनों को याद करने का कोशिश हम किए कि इसको आप थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में कैसे, शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम कम टाइम में याद करके रखें, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ये दोनों से ही डिफरेंस करके पूछते हैं और प्रोडक्ट के बारे में कि कौन क्या बनता है। तो जो यूजफुल है वो कोलवेज रिएक्शन बनाएंगे तो एसिड बनाएंगे तो ऑब्वियसली सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, और जो कम यूजफुल है जिसको हम लाइफ में कम यूज करते हैं वो रायमन टाइमन दोनों मिल के बनाए थे तो वो है जो सैलिसाइलिक एल्डिहाइड हो जाएगा। इसको कह दीजिए फिर से बेहतर रहेगा, ये फिनॉल और ये सैलिसाइल एल्डिहाइड है कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा फिनॉल ही, जब तक दोनों का सेम ही है, और ये सैलिसाइलिक एसिड। नेक्स्ट अब हम प्रॉब्लम देखते हैं कि रायमन टाइमन रिएक्शन या कोलवेज, हालांकि मैक्सिमम जो प्रॉब्लम जेईई मेंस या एडवांस में दोनों को बराबर ध्यान में रखना है, बट प्रॉब्लम जो पूछा गया वो रायमन टाइमन से पूछा गया, इससे भी कभी पूछते हैं। तो नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं कि रायमन टाइमन से कैसे आईआईटी में क्वेश्चन पूछे हैं और जेईई मेंस में कैसे पूछे हैं। तो प्रॉब्लम हम लिखते हैं और सोल्व करते हैं। तो जैसा कि बोले थे कि हम उससे आगे जो प्रॉब्लम पूछा हुआ है आईआईटी जेईई मेंस में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं, 11th में पूछते हैं। तो आईआईटी 2007 में इस रायमन टाइमन से प्रॉब्लम पूछा था, कंप्रेहेंसिव टाइप पे था पैसेज। तो ये इस प्रकार से पैसेज है जिसको हम पहले पढ़ते हैं। रायमन टाइमन रिएक्शन इंट्रोड्यूसेस एन एल्डिहाइड ग्रुप onto the aromatic ring of phenol ortho to the hydroxyl group. These reactions involve electrophilic aromatic substitution. ध्यान रखिएगा। This is a general method for the synthesis of substituted salicylic aldehyde as depicted below. कुछ स्टेप को नीचे वो लिखा है। वो पहला स्टेप है कि बेंजीन है, इस पे OH जुड़ा हुआ है, फिनॉल इधर इसके ये ऑर्थो पोजीशन में टपारा यहाँ पे CH3 जुटा हुआ, इसका इंटरमीडिएट कुछ होगा पहले, उसके बाद O- Na+ जो हम बोले थे कि OH- है, जो Na+ OH- टूटेगा तो OH- है जो H के साथ जुटेगा तो ऑक्सीजन बाहर, H2O बाहर निकलेगा और Na+ यहाँ पे आ सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, Na+- है। और ये CHO CH3 ये जस्ट के 10 रिमेंस हैं। अब HCl एक्वस HCl के परसेंस में है जो ये फिर OH CHO CH3 थर्ड प्रोसेस ये बनता है। तो अब रही बात कि ये इतना इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है और ये क्वेश्चन पूछा है। जब तक रायमन टाइमन रिएक्शन के बारे में हम एक एक चीज नहीं जानेंगे कि उसका मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के दरमियान क्या क्या कैटलिस्ट होते हैं उससे बनते हैं, तब तक हम ये क्वेश्चन को नहीं बना सकते। ये पार्टिकुलरली 2007 में आईआईटी उसी से वो कंसेप्ट से ही पूरा क्वेश्चन उठा के पूछ दिया था। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड इन द एबव रिएक्शन। सबसे पहले रायमन टाइमन रिएक्शन बोल दिया है और बोल रहा है कि इसमें रिएजेंट के रूप में क्या उपयोग होगा, रिएजेंट क्या होगा। रिएक्टेंट ये होता है, रिएजेंट या कैटलिस्ट जिसके परसेंस में करता है, तो वो कौन सा होगा। तो ऑब्वियस है कि हम बताए थे रायमन और टाइमन दो चीज है, तो उसमें सैलिसाइलिक पहले तो एल्डिहाइड बनेगा और उसके बाद उसमें जो बोले थे दोनों एक दूसरे को बेहोश करने में उपयोग किए थे, तो वो CHCl3 उपयोग किए थे और एक्वस NaOH, तो वही बोलना है। सबसे पहला ऑप्शन क्या, एक्वस NaOH तो सही है, CH3Cl इससे कोई मतलब ही नहीं है, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है, ये गलत हो गया। दूसरा हम देखेंगे एक्वस NaOH, ये तो सही है, CH2Cl2 इसका भी कोई मतलब नहीं है, CH2Cl2 का कहीं बात ही नहीं आया है रायमन टाइमन रिएक्शन में। नेक्स्ट हम देखेंगे एक्वस NaOH तो था ही, प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म, यही तो एक दूसरे को बेहोश करने में काम आता है ना, और वो दूसरे को बेहोश जो ट्रिक हम बता रहे थे उस टाइम इस चीज को हम डिस्कस किए थे।
तो एक्वस NaOH प्लस CaCl3 क्लोरोफॉर्म, इसी रिएजेंट के प्रेजेंस में, उपस्थिति में ये रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट को बनाएगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, आसानी से देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन इज, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है इसमें, इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कौन सा काम करता है कि नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल जहां पे जो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा होगा, और जो बोले थे कि इलेक्ट्रोफाइल जहां पे जो एसिड के जैसा बिहेव कर रहा होगा और वहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा, है कि नहीं। तो कमी किसमें था, जो हम CaCl3 देखे थे, याद होगा कि उसमें CaCl3 होता है, और CaCl3 जो होता है तो Cl और H था, जो OH से रिएक्शन करने के बाद H2 जो निकलता था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता था, ये निकलता था, तो क्या बन जाता था, डाइक्लोरोकार्बन। वही तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करता था ना, जो ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आता था। तो इसमें कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन, CaCl तो कभी होगा नहीं, CH प्लस Cl2 ये भी नहीं होगा, CCl2 एकदम कोई इसमें डाउट नहीं है, इसके बाद बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है जो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा, द इलेक्ट्रोफाइल इन द रिएक्शन। अगर यही कोल्वेज रिएक्शन रहता तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल हम देखते हैं कि CO2 होता है कि नहीं, क्योंकि कोल्वेज में CO2 आता था, यहाँ पे CO2 को कोई बात नहीं है। तो इस तरह से हम दोनों प्रॉब्लम को बना सकते हैं इस पैसेज को पढ़ने के बाद, और पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा जब तक ये रिएक्शन हमको ध्यान में नहीं है, उसका एक एक स्टेप नहीं पता है, तब तक इस चीज को हम नहीं बता सकते। और बोले थे जैसा कि ट्रिक्स अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमको वो चीज पकड़ाएगा। और राइमेटाइमल ट्रिक रखने पे क्लोरोफॉर्म सब ये ऑप्शन पकड़ लिए, NOH तो होता नहीं है, सब में NOH डाला हुआ, NOH, तो सिर्फ हम CaCl3 से इसको कैटेगराइज कर दिए कि ये सही होगा। और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल के रूप में जो CaCl3 था उसी से तो डाइक्लोरोकार्बन आता था, वही डाइक्लोरोकार्बन है जो इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। आई होप ये दोनों प्रॉब्लम समझ रहे होंगे। इसमें तीसरा प्रॉब्लम भी है जो कि आ नहीं पा रहा था, मैं तीसरा प्रॉब्लम को फिर से, ये यहाँ तक वही रहेगा, इसको मिटा कर तीसरा प्रॉब्लम हम फिर से बताते हैं और उसका क्या होगा ऑप्शन, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए इसको मिटाते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम बोले थे, दो प्रॉब्लम ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। तीसरा इस पैसेज कंप्रेहेंशन का ये जो आर्टिकल साहब ने पूछे थे, उसका तीसरा प्रॉब्लम ये है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट दिस इज, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, उसके बाद ये बनेगा, तब ये बनेगा। इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या बनेगा तो जाकर ये प्रोडक्ट, इसके बाद ये सेकंड स्टेप बना था, थर्ड स्टेप बना था। तो उसका तो बोले थे कि मैकेनिज्म जब तक नहीं रहेगा तो कोई उपाय नहीं है उसका, इसके लिए मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। और मैकेनिज्म ऑलरेडी लिख चुके हैं, वैसे उसको थोड़ा सा झलक दिखा देते हैं कि क्या था उस मैकेनिज्म में, क्या था। अगर मैकेनिज्म हम लिखना चाहेंगे तो कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, चलिए ये क्या था उसमें, एल्कोफिनॉल है कि नहीं, OH, और जो OH उससे O, यहाँ पे O माइनस Na+ लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो Na+ हम हर बार छोड़ दिया करते थे मैकेनिज्म में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो जस्ट के तस वैसे रख सकते हैं वहाँ पे, हालांकि इससे कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये जो जुटा हुआ है इसको जुटा रहने दीजिए, इससे कोई परेशानी नहीं किया हमारा मैकेनिज्म में। ऐसा नहीं है कि राइमेटाइमल रिएक्शन का मैकेनिज्म अब दूसरा हो जाएगा अगर यहाँ पे आ गया तो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जो है एज वेल एज उसी प्रकार से चला था। इसमें हम क्या देखे थे, जो OH माइनस है H2 से निकला था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया था, और जब नेगेटिव चार्ज आया था तो ये बॉन्ड यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड खुल के नेगेटिव यहाँ माइनस चला आया था और माइनस चला आया था, तो नेगेटिव चार्ज जो इस प्रकार से कह सकते हैं ऐसा था एक टाइम हमारा, कि यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ये ऑक्सीजन ऐसे था, और ये हमारा CCl2 डाइक्लोरोकार्बन जो था वो इस पे अटैक किया था, और वो इस पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो अटैक किया था तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा हाइड्रोजन भी यहाँ पे एक था, जो हाइड्रोजन के हटने के बाद वो देखे थे, और लास्ट में ये माइनस है जो एसिडिफिकेशन हुआ था, तो यहाँ पे क्या गया था C, जो हाइड्रोजन हट के यहाँ पे H और Cl, और ये Cl